یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ یو ٹی میں اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹروں بالخصوص نوجوانوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سویپ کے تحت متعدد بیداری پروگراموں کا انعقاد جاری۔ جموں کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ چناوی سرگرمیاں ہو رہی ہیں تیز۔ دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ جاری۔ تیسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن کل ہوگا جاری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برنائی کے سلطان حاجی حسن البولکیہ کے ساتھ کی ملاقات۔ دونوں لیڈروں نے مختلف شعبوں میں شراکت داری کو آگے لے جانے کے لیے کیے متعدد مفاہمت ناموں پر دستخط، اور مالی سال 2024-25 کے دوران بھارت میں شرح ترقی 7% تک پہنچنے کی عالمی بینک کی پیش گوئی۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں کے تحت ہونے والے اسمبلی انتخابات کے تعلق سے چناوی سرگرمیاں رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدوار اور آزاد امیدوار ان دنوں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر رہے ہیں۔ مرحلے کے تحت امیدوار کل یعنی 5 ستمبر تک اپنے کاغذات داخل کر سکتے ہیں۔ 6 ستمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ 9 ستمبر تک امیدوار اپنی نامزدگیاں واپس لے سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے تحت گاندربل ضلع کی کنگن ایس ٹی اور گاندربل، سری نگر ضلع کی حضرت بل، خانیار، حبہ کدل، لال چوک، چھانا پورہ، جڈی بل، عیدگاہ اور سینٹر شالٹینگ، بڑگام ضلع کی بڑگام، بیروا، خان صاحب، چراری شریف اور چالورا، ریاسی ضلع کی گلاب گڑھ ایس ٹی، ریاسی اور شری ماتا ویشنو دیوی، راجوری ضلع کی کالا کوٹ، سندر بنی، نوشہرہ، راجوری ایس ٹی، بدھل ایس ٹی، تھنا منڈی ایس ٹی، نیز پونچھ ضلع کی سرن کوٹ ایس ٹی، پونچھ حویلی اور مینڈر ایس ٹی نشستوں پر 25 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گاندربل سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج گاندربل حلقے کے لیے اپنے کاغذات داخل کیے۔ اس کے علاوہ حلقے کے لیے پی ڈی پی کے امیدوار بشیر احمد میر نے بھی اپنے کاغذات داخل کیے ہیں۔ یوں اس حلقے کے لیے اب تک 11 امیدواروں نے کاغذات داخل کیے ہیں۔ کنگن حلقے کے لیے 3 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ادھر سری نگر ضلع کی مختلف اسمبلی نشستوں کے لیے نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے بھی آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن 5 ستمبر کو جاری کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت امیدوار 12 ستمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 13 ستمبر کو ہوگی، جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 ستمبر مقرر ہے۔ تیسرے اور حتمی مرحلے کے تحت جموں کشمیر کی 40 نشستوں پر 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں جموں ضلع کی 11، سانبا کی 3، کٹھوا کی 6، ادھمپور کی 4، بانڈی پورہ کی 3، بارامولہ کی 7 اور کپواڑہ کی 6 نشستیں شامل ہیں۔ ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہو کر شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ تمام مرحلوں میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ اسی دوران پہلے مرحلے کی چناؤ تاریخیں نزدیک آنے کے ساتھ ہی سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں نے اپنی چناؤ مہم تیز کر لی ہے۔ امیدوار جگہ جگہ پر چناؤ ریلیوں اور جلسوں کا انعقاد کر کے رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کئی امیدوار گھر گھر جا کر چناؤ مہم چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں اور وہ لوگوں سے اپنے حق میں ووٹ طلب کر رہے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو یو ٹی کے 7 ضلعوں میں پھیلے 24 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جن میں پلوامہ ضلع کے 4، شوپیاں کے 2، کلگام کے 3، اننت ناگ کے 7، کشتواڑ کے 3، ڈوڈا ضلع کے 3 اور رام بن ضلع کے 2 اسمبلی حلقے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 3 مرحلوں کے تحت یو ٹی میں 88,03,000 رائے دہندگان اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے کے اہل ہوں گے، جن میں 44,89,000 مرد اور 43,13,000 خواتین ووٹر شامل ہیں۔
पहली मर्तबा वोट देने के अहल वोटरों की तादाद 4 लाख के करीब है। ECI ने राय दहिंदारों की सहूलत के लिए यूटी के 90 हलकों में 11,838 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने आज डोरू अनंतनाग में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के हक में एक बड़ी चुनावी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस लोगों के एहसासात और जज्बात की सही तर्जुमानी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग गूनागू मुश्किलात से दो चार हैं और वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद किया है। इस मौके पर JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा, मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। इससे पहले राहुल गांधी ने संगलदान रामबन में भी एक चुनाव रैली से खिताब किया और पार्टी उम्मीदवार विकार रसूल वानी के हक में वोट तलब किए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सरनल अनंतनाग में एक चुनाव रैली का इनेकाद करके जिले में बाज़ाब्ता तौर से मुहिम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग के हक में चुनाव मुहिम चलाई। अपनी तकरीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हुकूक की पासदारी करेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो मुतल्लिका हलकों में लोगों के साथ जुड़ जाएं और पार्टी का मंशूर उन तक पहुंचाएं। इस मौके पर डॉक्टर महबूब बेग ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से वादी के लोग गूनागू मुश्किलात से दो चार हैं और पार्टी लोगों के मसाइल हल करने की तरफ खुसूसी तवज्जो देगी। बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज बालहामा से श्रीनगर तक एक चुनावी रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने पार्टी के लालचौक हलके के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन के हक में चुनाव मुहिम चलाई। बाद में एजाज हुसैन ने हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर के लिए अमन और तरक्की का एक वाज़ेह एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता खित्ता बनाने के लिए तनदेही और लगन के साथ काम करती रहेगी। उधर CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कोलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव रैलियों से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की राहत रसानी करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और दूसरी तरफ लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इंतखाबात के दौरान ईमानदार और मेहनतकश उम्मीदवार के हक में अपना वोट दें। यूटी भर में राय दहिंदगान में वोटिंग की अहमियत के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत इख्तराई प्रोग्रामों का इनेकाद शिद्दोमत से जारी है। मुख्तलिफ जिलों में जिला चुनाव अफसरों की निगरानी में तालीमी इदारों और अवामी अहमियत के मकामात पर खास प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें राय दहिंदगान खास तौर से नौजवानों और पहली मरतबा वोटिंग के अहल वोटरों में जमहूरी अमल की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है, ताकि आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो सकें। स्वीप के तहत आज किश्तवाड़, डोडा, बुद्धल, राजौरी, कठुआ और दीगर मकामात पर बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में वोटरों खास तौर से नौजवानों और तलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने वोटरों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के दौरान कसीर तादाद में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2024 के दौरान मीडिया इदारों की तरफ से कोई भी एग्जिट पोल कराने पर पाबंदी आयद की है। इस ताल्लुक से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चुनाव नताइज पर एग्जिट पोल पर पाबंदी चुनाव के पहले मरहले की तारीख के दिन वोटिंग शुरू होने से लेकर जम्मू कश्मीर में चुनाव अमल के इख्ताम के आधे घंटे के बाद तक जारी रहेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के साथ बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्हें सुल्तान हाजी हसन से मिलकर खुशी हुई। मोदी ने कहा कि भारत और ब्रुनाई अपने कारोबारी, तिजारती और अवाम के दरमियान राब्तों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने की साझेदारी का खैर मकदम किया। रहनुमाओं ने दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी, दवासाजी और सेहत वगैरह के शोबों समेत बहुत से शोबों में बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया। मोदी ने भारत के 1 अरब 40 करोड़ अफराद की जानिब से ब्रुनाई की आजादी के 40 साल पूरे होने के मौके पर ब्रुनाई के सुल्तान और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीमेट्री और सैटेलाइट ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के बारे में मुफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ब्रुनाई के शाह भी मौजूद थे। दरियासां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनाई का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद आज दूसरे पड़ाव पर सिंगापुर के शहर लियान पहुंच गए, जहां सिंगापुर के वज़ीर दाखिला के शान मगम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अपना सिंगापुर के हम मुनसब लॉरेंस वोंग की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। शाम को सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज में निजी अशाइया का एहतमाम करेंगे। दोनों लीडर कल भारत सिंगापुर कलीदी शराकतदारी को आगे बढ़ाने, नीज इलाकाई व आलमी नौयत के कई मामलात पर एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करेंगे। ज़राअत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर से HADP के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो तेज तर बुनियादों पर हुकूमत के मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ज़रई और बागबानी शोबे को यहाँ के इक्तिसादी मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और हुकूमत इस शोबे को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में अय्याम मुतबरका के दौरान दरगाह हजरत बल में ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम करें। उन्होंने खास तौर से बिजली, पानी, सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट और तबी निगहदाश्त की तरफ खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह के इंतजामात वादी के दीगर मजहबी मकामात और जियारत गाहों पर भी दस्तियाब रखने जाने चाहिए। यूक्रेन में काबीना अरकान समेत कम से कम 6 अफसरान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इन अफसरान ने सरकारी ओहदों में बड़े पैमाने पर इम्कानी रद्दोबदल के तनाजुर में इस्तीफा दिया है। आलमी बैंक ने उम्मीद जाहिर की है कि चैलेंज से पुर बैरूनी हालात के बावजूद भारत का वस्त मुद्दती खाका मुस्बत रहेगा। आलमी बैंक की ताजा तरीन रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि माली साल 2024-25 के दौरान शरह तरक्की 7% तक पहुंच जाएगी और ये शरह 2025-26 और 2026-27 में भी मुस्तकम रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महसूल की शरह में इजाफा होगा और मजीद माली इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके साथ साथ GDP और कर्ज के तनासुब में कमी आ जाएगी। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।